everyone, and welcome back to my YouTube channel Reading with KSS. Today, I am going to be doing a segment called Let's Talk with Batman with my brother Kartike. And in lieu of the Snyder's Cut trailer dropping soon, and Kartike has been passionate, obsessed, and fascinated with comic books for as long as I can remember. But before we get started on comic books and his obsession with Batman, let me begin by asking, where are you right now and what time is it? Uh, I'm in my PG and it's 10 o'clock in the morning. Nagpur? We are late. Nagpur. So Kartike has just started his master's from Nagpur University in political science. And okay, so let's talk about comics. So what is your earliest childhood memory about reading just comic books in general? And do you remember like by what age did you like start reading comics? The earliest memories, I guess, when we go to, we used to go to railway stations to buy new comics like Cha Chaudhary. We started off with Hindi comics, and you also pushed me to read this Pinky, Cha Chaudhary, Tarzan. So yeah, uh, and Mandrake, new types of Hindi comics. But then, In Katni, we didn't have uh, a proper bookstore. So the only place where you could buy comics and books was this small shop kind of a thing inside the railway station. So where we would all go and buy like comics and books. So that's why Karthik is talking about where we all went as children to get like our dose of comic books and books. And so, what's your earliest memory of? So you started reading Champak and Mandrake, and I remember Nagraj as well. You had lots of Nagraj comics. नागराज थोड़ा बाद में पढ़ना चालू किए थे हम लोग, पर तुम लोग नहीं किए थे ना, हाँ, नहीं मैंने भी पढ़ी मतलब थी पर मैंने उतनी नागराज नहीं पढ़ी जितनी तुमने नागराज पढ़ी है. So coming उसकी जो back to सीरीज आने वाली थी वो भी कैंसिल आउट कर दिया. sorry क्या उसकी सीरीज आने वाली थी, कैंसिल आउट कर दिया उसको. नेटफ्लिक्स पे. डीडी नेशनल पे आई गेस. अच्छा मुझे नहीं मालूम. तो ठीक है नागराज से आगे तो बैटमैन मतलब व्हाट्स योर अर्लीस्ट मेमोरी कि मतलब did you see the movie first or did you start reading comic books first? My earliest memory is yes, that George Clooney movie of Batman, where he had ATM card of Batman. वो पहले कितना कूल लगता था कि कितना अच्छा कर रहा है जॉर्ज क्लूनी और ये क्या हो रहा है, ये आइसमैन And कौन है, Mr. Freeze, Arnold रॉबिन. Schwarzenegger was Mr. Freeze ना उसमें and वो Kill Bill हाँ वाले हाँ Uma Thurman was Poison Ivy. Yes. हाँ So that's your earliest memory. हाँ. वहां पहले बैटमैन वाज सपोज्ड टू बी दैट कूल पर्सन, बैड एज डूड हु थ्रोज हिज सार्केज्म एट एवरीवन. तो पहले बस ऐसा लगता था कि इतना बहुत कूल हीरो है. Hmm. फिर जैसे जैसे बड़े हुए कॉमिक पढ़ना चालू किया, फिर पता चला नहीं, और भी लेयर्स हैं, और भी मतलब ऐसी चीजें जो एक्सप्लोर कर सकते हैं बैटमैन की. सिर्फ कूलनेस या फिर वो रॉ एक जो चाहिए था, बस वो नहीं देता है. तो बेसिकली क्रिश्चियन बेल की एज इन बैटमैन बिगिंस देखने से पहले यू हैड स्टार्टेड रीडिंग बैटमैन का कॉमिक्स हाँ, स्कूल से. स्कूल से एज इन व्हेन यू वर स्टडीइंग व्हेन यू वर इन योर मिडिल स्कूल इन कटनी. हाँ हाँ सो कटनी में कार्तिकेय वाज इन पार्ट्सले school where he used to boss around everybody and he used to read Batman comics there. So and so तुम्हारे बचपन से like what is like the earliest issue or like the oldest issue that you have of like Batman comics का that बचपन का. uh, the first one I guess that first Batman comic was that he had some crisis in Hmm. Gotham City, and when he finds out that there's some mafia work was going on which was connected to Shanghai, so he goes to Shanghai, Hmm. and then he teams up with that hero in Shanghai. ठीक है तो तुम्हारे पास बैटमैन का भी कितना बड़ा कलेक्शन. सिंगल इश्यूज में तो है, मतलब सिंगल इश्यूज का तो काउंट याद नहीं है, पर अगर जो अच्छी अच्छी हैं जैसे किलिंग जोक,
फिर मेन टावर ऑफ बेबल, वो शंघाई वाई जो बताया, हम्म तो 25 के ऊपर जो कंप्लीटेड इश्यूज हैं वो ओके 25 के ऊपर हैं। हम्म। और सिंगल इश्यूज तो वो मिलती नहीं है आजकल, 4 in 1 वाली, अच्छा वैसी वाली तो बहुत सारी हैं, पर कुछ कुछ कंप्लीटेड नहीं है क्योंकि इंडिया में बहुत कम रहता है ना वहाँ, हाँ मतलब मिलता नहीं है ना, मार्केट है अच्छा। हाँ, मुझे याद है लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज तो ग्रीन पार्क के बाहर एक ऐसे ठेले टाइप के लगते थे, आई यूज्ड टू हैव सेकंड हैंड कॉमिक्स, तो मैं वहां पे जितनी ऑलमोस्ट कॉमिक्स दिख जाती थी मेरे को, मैं सब तुम्हारे लिए खरीद के ले आती थी मैं वहां से। वो आई थिंक वो 4 in 1 वाली थी ना, वो जो मोटी वाली होती है, देयर लाइक हाँ, मल्टीपल। वो नैनीताल में एक शॉप थी ना, क्या नाम था उसका? नारायण्स नारायण्स। नारायण। हाँ तो नारायण्स, हाँ नैनीताल फॉर ऑल दोस पीपल हु नो आई मीन नैनीताल एंड नारायण्स, तो हम जब भी जाते थे नैनीताल एंड नारायण्स, so Kartikeya would like buy this bundle and then our father used to get angry, इतने बड़े हो गए अभी तक कॉमिक्स पढ़ रहे हो। uh, so and so basically like Batman was created by like Bob Kane and Bill Finger I guess, right? And then in subsequent, ये सही है कि गलत है? सही है नहीं ना? सही है। वो हुआ क्या था कि बीच में बॉब केन और बिल फिंगर, मतलब उन्होंने क्रिएट तो किया था साथ में बैटमैन, हाँ पर बीच में बॉब केन ने पूरा रॉयल्टी और वो ले लिया था कि अच्छा उसने बनाया है, जबकि मोस्ट ऑफ द आइडियाज जो आए थे वो बिल फिंगर के थे। ड्रेस अच्छा का कलर, उसका फिलोसफिकल चीजें, उसके अच्छा उसके सराउंडिंग की कोई भी चीजें बैटमैन की उसने बनाई थी। हम्म। उसको फिर रॉयल्टीज भी नहीं मिली एज एन आर्टिस्ट, बिल बिल फिंगर को। फिंगर को। अच्छा हाँ, बॉब केन ने सब ले लिया था। तो ये सब बेसिकली 1940s 50s में हो रहा था, एंड देन आई एम अज्यूमिंग इवेंचुअली बाकी लाइक द अदर आर्टिस्ट्स एंड ऑथर्स माइट हैव लाइक पिक्ड अप एंड हाँ, डूइंग। तो तुम्हारा फेवरेट कौन है, लाइक of course you've like read so many over the years, who's like your favorite artist slash author जिसकी my सीरीज तुम्हें genuinely favorite writer पसंद of है? a Batman, first of all, Alan Moore एलन is my मोर इज लाइक, favorite. हाँ, जिसने वॉचमैन भी लिखी है, राइट? हाँ, he also written Watchmen something, so he was my favorite writer. And other than Alan Moore is Frank Miller. He wrote that story, The Dark Knight Returns, Part One and Part Two. Frank Miller is also the person who created Electra, right? Yes, हाँ, okay, nice. तो वो उसका, we'll briefly touch upon the cartoons before we move on to like the latest Snyder cut and all of that. So you've seen the entire Batman series, or is like how many times have you seen it? I guess 2 times only. It's a big series. And छोटे में याद करो ना, वो जस्टिस लीग और बैटमैन एनिमेटेड सीरीज आती थी, दो सीरीज थी जो बहुत अच्छे से देखते थे, मतलब डीसी की सुपर हीरो रिलेटेड। तो बैटमैन सीरीज इज ऑफ कोर्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट नॉयर सीरीज आई हैव एवर सीन। Hmm. एनिमेटेड सीरीज में आज तक किसी ने इतनी मेहनत तो नहीं की थी, कि स्टोरी में मेहनत हो रही है, कैरेक्टर डेवलपमेंट में मेहनत हो रही है। तो एक बात ये थी कि जब भी बैटमैन रिलेटेड कुछ भी आता था, तो Hmm. ये था कि राइटर्स को पता था कि पिछले वाले राइटर ने इतना अच्छा किया है, Hmm. तो इसको ही इससे जंप करना है, इससे आगे जाना ही है, वरना फिर Hmm. लोग खुश नहीं होंगे ना। Hmm. एक राइटर इतनी अच्छी स्टोरी देके जा रहा है, दूसरा राइटर भी अच्छा, तो तीसरे को लगता था कि अगर मैं लिखने वाला हूँ बैटमैन की स्टोरी, तो मुझे कुछ अच्छा ही लिखना पड़ेगा Hmm. अगर लाइमलाइट में आना है। तो वो अच्छा लगा था मुझे कि अलग अलग राइटर्स अलग अलग चीजें Hmm. ऑफर करते हैं, और मतलब सेंस भी बनता है एक टाइम में, ऐसे कि नहीं कि आप फालतू में डार्क कर देते कोई भी चीज को Hmm. बस इंटरेस्टिंग बनाने के, तो वो ऐसा नहीं लगता, फेक नहीं लगता। तो वो बैटमैन अभी कहीं अवेलेबल, एज इन इज इट अवेलेबल ऑन एनी स्ट्रीमिंग साइट्स, या इंडिया में वो कार्टून नेटवर्क या और भी जितने सारे बथेरो चैनल है उनमें कहीं पे वो वापस नहीं, और, उनका दूसरे एनिमेटेड शोज अच्छा बन गए उसके बाद से बहुत सारे। ओके बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड, द बैटमैन, तो वो था। पर द बैटमैन एनिमेटेड सीरीज में मार्क राइट हैमिल जोकर का वॉइस दिया था। और हम्म फिर अभी लेटेस्ट मूवी आई थी लास्ट टू लास्ट ईयर, द किलिंग जोक, हम्म बहुत खराब मूवी थी, पर अच्छा उसमें मार्क हैमिल था oh yes, we will get एनिमेटेड में। back to the Killing Joke movie later. So before that, let's move on to the
like your favorite Batman, as in movie playing Batman. Who is your favorite movie playing movie? Christian Bale. Huh, huh, same. Christian Bale. Mine is also Christian Bale. But you don't like Ben Affleck, right? No, I don't like Ben Affleck as Batman. Like I like Ben Affleck as an actor. Like He just portraying a different Batman in different universe where Batman just lost his all moral code because his Robin died. So he's just angry with the criminals. So he's him. They show it that there's a dead Robin costumes hanging oh, it. अच्छा मैंने इतना फिर probably ध्यान नहीं दिया होगा. My bad. But anyways, I think it's either Ben Affleck's bad acting or it's just that the latest reboot of the Batman and Superman movie was again pathetic. Seriously. Previous अच्छी लगी थी. At least it had a different concept than other than other superhero movies. कौन सी बैटमैन एंड सुपरमैन? हाँ, अच्छा I नहीं नहीं like the नहीं नहीं. concept. हाँ, तो वो है. एंड देन फॉर दिस वीडियो आई वाज जस्ट लाइक डूइंग सम रिसर्च. सो ये जो जस्टिस लीग मूवी रिलीज हुई थी, एंड देन देयर वाज whole thing that Snyder suffered from a loss, and then like he pulled back, or he was asked to pull back. I won't get into that. And then somebody else came, and then now he's releasing the movie that he intended to make it all along. हाँ, But then there are some people saying that his whole idea or his whole conception of the Justice League or this universe wasn't as grand, and it's screwed up in some sense. तो ये जो स्नाइडर कट है ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं होने वाला. It can be slightly better than the Justice League that was released, but it's not going to be like oh my god, Lord of the Rings. Sorry, bad example, but नहीं हुआ क्या था कि वो आई जो इसको जैक स्नाइडर ने जो 2016 में मूवी शूट की थी वो 4 आवर लॉन्ग थी हम्म, विथ 5-6 कैरेक्टर्स 4 आवर लॉन्ग थी. हाँ तो फिर इसकी डॉटर की डेथ हो गई शायद. हाँ. फिर इसने पुल बैक कर लिया और जॉस विडन आ गया दूसरा हम्म डायरेक्टर. हम्म उसने मूवी 2 आवर्स की कर दी विथ कमर्शियल एलिमेंट्स एंड ऑल ऑफ दैट जोक्स वगैरह. हम्म. रिलीज किया तो मतलब जितना उसने बनाया था उसका सिर्फ क्वार्टर. तो हम्म. अभी मतलब बट मैंने फैंस ये ने. भी सुना ना कि उसने जो सेकंड वाला आया था वो वार्नर ब्रदर्स वालों ने, उस वार्नर ब्रदर्स प्रोड्यूसर है ना, हाँ, उन लोगों ने उस जो सेकंड डायरेक्टर आया था उसको बोला भी था टू रीशूट लाइक अ लॉट ऑफ द अदर सीन्स. हाँ हाँ. So he was sort of just like patching up a job that Warner Brothers and Jack Snyder had set out to do, but they could. So you can't really blame him also, right? हाँ, पर नहीं उसको ब्लेम तो उस पे वाले हुए हैं जैसे कि एक्टर्स ने बोला कि मिसबिहेव किया है या फिर हाँ. अच्छा अब्यूज मैं. वगैरह. अच्छा. पर मेन बात ये थी कि बीच में जस्टिस लीग का सब खत्म हो गया था. ये सब हम्म. फैंस ने दोबारा डिमांड किया मूवी का इसलिए आ रही अच्छा. है. ओ अच्छा, I didn't know this. फैंस ने वो हैशटैग चलाया था रिलीज द स्नाइडर कट. ओ. हैशटैग इसलिए जब भी वो कुछ आएगा मूवी का तो नीचे लिख के आता है हैशटैग स्नाइडर कट. अच्छा. क्योंकि फैंस ने मांगा है ये मूवी और वरना ये पहली बार हो रहा है कि कोई स्टूडियो आपको दोबारा मूवी देख रहा है दे रहा है जो रिलीज हो हाँ, ये चुकी तो है. मैंने भी नहीं सुना. हाँ, इतना तो हाँ वो है. तो इसमें इसलिए ऐसा है कि मुझे तो मतलब कॉन्सेप्ट ठीक ही लगा था. कुछ खराब भी नहीं था. अच्छा था कॉन्सेप्ट. और अगर इतने सारे कैरेक्टर्स ला रहा है तो थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा. हाँ, नहीं वो बात. वो सेकेंडरी कैसे होता है. मैं जब थिएटर में बैठा था मैं मूवी देख रहा हूँ इतना क्रिंज लगा मुझे. मैं कहा मैं देख क्यों रहा हूँ मूवी अगर बैटमैन इज जोकिंग. वंडर वुमन का कुछ फाइट सीन नहीं. हाँ. सुपरमैन की मुस्टैच एकदम ऑकवर्डली सीजीआई हम्म. रिमूव्ड. कुछ देखने था ही नहीं उसमें. फर्स्ट वाली बहुत खराब थी. तो तुम एक्साइटेड हो वहाँ इंडिया में रिलीज हो रही है थिएटर्स में कि नहीं थिएटर्स में हॉटस्टार तो यार नहीं. कहीं? ओटीटी में होगा. कोई भी अभी तक ओटीटी. कुछ अनाउंस हुआ है कि कौन हॉटस्टार या किस में? भी कुछ अनाउंस नहीं हुआ है. नहीं अभी तक नहीं. So maybe after you watch the movie, wherever you do, I know you have ways and means to watch the movie, then we can do like a part 2 of Let's Talk About Justice League. हाँ संडे अच्छा, को ट्रेलर. अभी मतलब कल संडे को ट्रेलर ड्रॉप हो रहा है. हाँ 14 फेब. अच्छा. जैक स्नाइडर ने 14 फेब शायद पता नहीं कुछ होगा डेट का तो वो भी नहीं पता. अच्छा. सो मूविंग ऑन टू, आई नो तुम गेम्स भी बहुत खेलते हो बैटमैन के. मतलब तुम कार्तिक के हर टाइप के गेम्स खेलता है और रात भर फिर वो उसको नाइटमेयर आते थे बचपन में गेम्स खेलने के, वायलेंट गेम्स खेलने के, एंड ही वुड स्केयर द डे लाइट्स आउट ऑफ द एंटायर फैमिली एट नाइट. There's a series of Batman games which are called Batman Arkham game.
कुछ लोग कहते हैं कि जो बैटमैन गेम में था वो बेस्ट बैटमैन अभी तक का है जो स्क्रीन में आया है, अच्छा। बिकॉज ही इज ruthless, he's but he has a moral code, हम्म he has गेम्स में ज्यादा विलन्स दिखाए हैं, हम्म तो और मतलब एक परफेक्ट बैटमैन जो मूवीज में अभी तक नहीं मिल पाया है हम्म। वो गेम ने डिलीवर किया है, और गेम की अच्छा स्टोरी भी अच्छी है, और फिर अच्छा। रोग गैलरी और उसके विलन से इंटरेक्शंस भी अच्छा दिखाया है, तो लोगों को गेम बहुत पसंद आया मोस्टली, तो मैं बोलूँ हाँ, तो ये सॉरी ये गेम्स का हो गया. नाउ कमिंग बैक टू द मूवी, so किलिंग जोक movie was like an animated movie that had come out with like Mark Hamill as playing or like voicing the Joker कुछ साल पहले. So I've heard like it was pretty bad, and then I remember like हमारा, and by the way हमारा एक Instagram page है where we talk about books and comics. It's called Kanika_Karthike. Do check it out. And Karthik is posted about the Killing Joke there. I didn't know there was a movie until you mentioned. So मूवी हाँ, अच्छी थी नहीं थी क्या थी तुम्हारी कॉमिक टिप्पणी? जब एलन मोरे ने लिखा था तो एलन मोरे को सिर्फ एक शॉर्ट नोट बताना था, स्टोरी भी नहीं बतानी थी उसको, सिर्फ शॉर्ट नोट बताना था थ्रू दो। द किलिंग जोक. हाँ, अच्छा. उसको बस ये पोर्ट्रे करना था कि एक सुपर हीरो एक और एक सुपर विलन साथ में, हम्म मतलब एक कुछ हैपनिंग हुई है छोटी सी, ज्यादा कुछ इतना था नहीं इंटरेक्शन, हम्म पर वो बहुत अच्छी टर्न आउट हुई, मतलब उनका बातें फिर फिलोसफिकल जो भी हम्म. एक्सपेक्ट रहता है हाँ हाँ. उसका, वो फैंस को बहुत पसंद आई क्योंकि वो अच्छी थी भी, तो हम्म डीसी की एनिमेटेड मूवीज बहुत अच्छी रहती हैं, हम्म. इन्होंने पता नहीं किलिंग जो बनाने का प्लान किया, और इंटरवल तक मूवी बहुत एक कॉमिक से एकदम अलग है, अच्छा. बैट बैट वुमन का कुछ आर्क चल रहा है उसमें अलग ही, हम्म फिर लव ट्रायंगल हो गया एकदम से माफिया बैटमैन और बैटगर्ल के बीच में फिर इंटरवल के बाद मूवी किलिंग जोक चालू होती है, मार्क हैमिल तो था उसमें, पर हम्म. इंटरवल तक पता नहीं कुछ अलग आर्क चल रहा था, तो वो बोर हो गई थी, वो बहुत खराब हो गया था जो, मतलब बहुत ज्यादा खराब नहीं थी पर अच्छी भी नहीं थी किलिंग जोक, इट वाज मीडियोकर। अच्छा. पार्ट 2 आफ्टर द स्नाइडर कट कम्स आउट एंड सी कि कार्तिकेय के एक्सपेक्टेशंस क्या है और क्या वो खरे उतरते हैं वो 4 घंटे की मूवी देखने के बाद या नहीं.